ओके, साउंड क्लियर है ना? तो चले फिर हम आज के लेक्चर शुरू करते हैं। आज के ऑलरेडी एक्सप्लेन यू लाइक द सिग्निफिकेंट ऑफ द बायोस्टैटिस्टिक्स, की बायोस्टैटिस्टिक्स क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। ठीक है। क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है कि आपको, अगर आपने कोई रिसर्च की है, ठीक है, अगर लेट्स जस्ट डू एग्जांपल लाइक देयर इज द अवेलेबल और द प्रिवेलेंस ऑफ चिकन पॉक्स इन द पाकिस्तान, बट हाउ मच परसेंटेज इज दैट। ठीक है, आपको जब तक परसेंटेज पता ही नहीं है ना, तो कैसे कहोगे हाँ चिकन पॉक्स पाकिस्तान में है। ठीक है, कितने परसेंटेज में है नहीं पता। तो दैट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द बायोस्टैटिस्टिक्स। रिसेंटली लाइक जिस तरह की इस्लामाबाद में एचआईवी एड्स की जो प्रिवेलेंस इंक्रीज हुई थी बिकॉज ऑफ सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ इम्प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अगर हमको हमको ये स्टैटिस्टिक्स पता ही नहीं ना कि हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच पॉपुलेशन आर अफेक्टेड बाय दैट, हाउ मच इंडिविजुअल और डॉक्टर आर अफेक्टेड बाय दैट, तो हमें वो इंसिडेंस का एक वेट नहीं पता होता। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं पता होता। So that is the that everything of the research is explained by the biostatistics. That's why without statistics, research becomes only opinion. That's the very definition that I want to explain. Without statistics, research becomes only opinion. ठीक है, हाँ। मतलब कि पाकिस्तान में चिकन पॉक्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज द ओपिनियन, बट इट इज नॉट द रिसर्च। लाइक इट्स नॉट लाइक एज अ मीनिंगफुल रिजल्ट without statistics, because after we put the statistics in that topic, in that situation, or in that clinical condition, then it becomes the meaningful. Okay, now let's jump into the variable. Like, what are the variable that we see in the research paper? तो वेरिएबल कितनी टाइप्स की होती है? वेरिएबल आपकी, मैंने जो, अब अगर सिंपल सी अगर हमको देखा जाए तो वेरिएबल टू टाइप्स की होती है। वन इज द कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड वन इज द कैटेगोरिकल वेरिएबल। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूअस वो होती है जिसकी यूनिट होती है जो कंटिन्यूअसली मेजर होती है, लाइक द बीपी, ब्लड प्रेशर है ना। ब्लड प्रेशर 120 होती है, 121 होती है, 121.1 होती है ना, 122.2 mmHg होती है। लाइक एवरीथिंग कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस इन द पॉइंट, इन कंटिन्यूअस इन द डेसिमल। एंड व्हाट आर द कैटेगोरिकल डेटा एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ नोइंग द वेरिएबल। वेरिएबल पता होना क्यों जरूरी है, आज मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट टू नो द वेरिएबल। बिकॉज whatever you do the analysis, whatever you put the result, effect, everything, that is the need, there is the need of variable. I have made the beautiful table here today, so which explain everything of the significance of this. In categorical variable there are two, that is the nominal and another one is ordinal. ठीक है, अब nominal and ordinal is also one of the simple thing. Like ordinal is like it already explained by its word, like the order. So whatever the variable that is explained in the order, that is the ordinal data, and those who which is not in the order, that is the nominal data. Like the different colors, different, so different colors are like red, yellow and blue. So these are the nominal data. But what is the ordinal data? Like you have order the output, like good, bad, worst, and other thing like uh, satisfy, less satisfy, more satisfy. Like you have ordered the thing, like the first, second, third rank, you know, that's the ordinal data. And you may ask, like, sir, where is the binary variable? Where is the dichotomous variable? Yes, that's the dichotomous and the binary variable is come under the nominal data, because the binary variable is one of the kinds of the nominal data that has only the two output. Like if there is only two color exist in world, then it could be the binary variable. Like if you generally say like about the colors of human being, like races, then there is the black and white, and black and white means there is the two outcome, then it could be the binary variable or dichotomous variable. Did you got the point of the variable? It would be it would make sense when I explain the variable with link with the which test you can use while doing the research. Then it could make a good sense to you, and all thing becomes clear after I explain the table. So why are variables are central to research? Because they connect the research question to the data set. And if you ask, is poor sleep associated with depression among medical students, then you immediately need at least two variables, that is the sleep quality and the depression. And if you ask, after adjusting for age and sex, is smoking associated with the elevated blood pressure, then you need know
smoking, blood pressure, age, sex, and the perhaps BMI or physical activity as well. That is the covariates and all that variable in needed. So variable are the central to research. Like मैंने आपको कल भी जब साइनोप्सिस लिखने के लिए सिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू एक्सप्लेन इज वेरिएबल, व्हाट आर योर वेरिएबल, व्हाट आर योर कंफाउंडिंग फैक्टर्स, है ना, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग नाउ। अब इसके बाद आती है ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कल, लाइक व्हाट आर द एक्सपोजर वेरिएबल, व्हाट आर द आउटकम वेरिएबल, एंड व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड व्हाट आर द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि लाइक दोज हु आर इंडिपेंडेंट, दैट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक हु इज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर थिंग्स, लाइक स्मोकिंग इज नॉट डिपेंडिंग, लाइक जस्ट स्मोक किया खत्म हो गया। बट द लंग कैंसर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज lung cancer is depend on the smoking, on the age, on the working environment of that person. So that's the dependent variable. So that's I already explained. And what are the confounding variable? There is the one acyclic graph like 10 10 10। तो आप ये होती है, ये होती है, एंड ये होती है, और ये इस तरह करो। तो ये होती है कि जैसे कि इफ यू वांट टू गेट द research like the smoking causes the lung cancer, but there are other factors that influence both smoking and the lung cancer, like what are the other factors that like the age, है ना। अगर जितने जैसे कि नहीं कि 10 साल का बच्चा तो नहीं खाता ना सिगरेट, along with the progression of the age he would involve himself in the smoking, and along with the progression of the age there are lot of factors that lead to his towards the lung cancer. So this age affect the both exposure and the outcome. That's why age is the confounding factor. So you need to know what is the confounding variable in your research. And there is the covariate, that is the variable included in the analysis because it may influence the outcome or because the researcher wants to adjust for it. Simple, that's the variable that is used in your analysis. Now the best table you got to know। अब आ गया हुआ है कि आपको वेरिएबल मिलना कितना सिग्निफिकेंट है। ये अब हम करते हैं ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, इसको हम अभी ना आप लोग को सारा कुछ नहीं समझ आ सकता, लाइक का स्क्वायर टेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एनोवा टेस्ट, टी टेस्ट। अभी मैं इसको नेमिंग करूंगा बिकॉज ये चीजें कल एक्सप्लेन होगा। कल मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में, दैट वुड बी प्रोबेबली फ्राइडे। फ्राइडे ये चीज बहुत अच्छा एक्सप्लेन होगा बिकॉज आज ही मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो इट वुड बी लाइक अ लॉट इन योर प्लेट, सो इट वुडंट बी डाइजेस्टेबल। सो इन स्मॉल टाइम और कम टाइम में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लाइक क्यों सिग्निफिकेंट होता है मैं ये बता देता हूँ। देयर इज द क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा मैंने क्या बताया था आपको, दो नॉमिनल एंड द ऑर्डिनल जो डेटा होती है, लाइक द सेक्स। सेक्स क्या होती है कैटेगोरिकल डेटा बिकॉज देयर इज द ओनली टू प्रोबेबिलिटी। हाँ और भी होती है बट जनरली हुई क्लासिफाइड इन मेल एंड फीमेल। अगर किसी को बुरा लगे तो इधर मैं लिख दूंगा एक और, क्या कहते हैं उसको, अदर्स। अदर्स में सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह स्मोकिंग स्टेटस, देयर वुड बी द ओनली टू पॉसिबिलिटी लाइक द यस और नो, है ना। दैट इज द कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। अब इसमें इस तरह की क्रॉस सेक्शनल अगर एग्जांपल लिया तो पुअर स्लीप, यस और नो। अब इसमें कौन कौन सी टेस्ट लग सकती है, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट 3 वेरिएबल के लिए लगती है, ठीक है। एंड फिशर एग्जैक्ट टेस्ट एंड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंट स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकते हैं, दैट द creating categories as if they were the continuous number। अब देखो कि अगर कंटिन्यूस होता ना तो अब डिफरेंट आपकी टेस्ट लगती है, इफेक्ट साइज डिफरेंट लगती है, टेस्ट डिफरेंट लगती है। लाइक कंटिन्यूस मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था कंटिन्यूस के लिए, लाइक द बीपी, है ना, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर कितनी है, बीपी कितनी है उसकी, एंड व्हाट आर द लाइक द ब्लड वॉल्यूम, एंड और क्या हो सकती है, पेन, है ना। पेन भी कंटिन्यूस होती है, लाइक पेन ऑर्डिनल भी हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन हाउ यू कलेक्ट द डेटा। एंड इस तरह करके नाउ द इट कैन टेक द मेनी वैल्यूज ऑन द स्केल, सेम थिंग लाइक आप बीपी ना कितने भी हो सकते हैं, 121.1 mm Hg एंड 121.2 mm Hg, है ना। इट कैन बी द कंटिन्यूस एंड इट कैन टेक द एज मेनी वैल्यू एज ऑन द स्केल। इसके बाद जैसे कि अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस जो डेटा है, कंटिन्यूस जो वेरिएबल है, इसको हम वेट में, हाइट, जिस तरह की ये एग्जांपल हो गया, सिस्टोलिक, ब्लड प्रेशर, स्लीप ड्यूरेशन एंड द आवर्स ऑफ स्लीप एंड नाइट। सो टी टेस्ट, इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, टी टेस्ट। टी टेस्ट में भी दो होती है, ठीक है। एक पेयर टी टेस्ट होती है, पेयर टी टेस्ट, और दूसरा होता है अनपेयर टी टेस्ट। अभी ये इतना ही बस आपको जानना जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेक्स्ट 2 लेक्चर में बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। तो पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट होता है। ये सिंपल होती है कि मतलब कि अगर आपकी डेटा पेयर्ड है ना
जिस तरह की लेट्स टेक हियर इज द तला हारून, एंड तला हारून की हम रिसर्च कर रहे हैं। तो जैसा कि उसका ब्लड प्रेशर आज हमने ले लिया, एंड वी गिव हिम अ मेडिसिन, एंड इन नेक्स्ट डे वी टेक हिज ब्लड प्रेशर अगेन। So same person, two outcome, then there is the pair t test. But if we compare the blood pressure of Tala Harun and Mariam Khalid, then it would be the unpaired t test, because it's the same outcome but the different people. So ये और ज्यादा एक्सप्लेन होगा, बट here अभी कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए इतना काफी है। देन एनोवा टी टेस्ट एज वेल, एंड कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन थिंग, वी नीड टू डू दैट फॉर दिस कंटिन्यूस वेरिएबल। और नॉमिनल के लिए ऑलमोस्ट सेम ऑफ आपकी कैटेगोरिकल डेटा, बिकॉज इट इज द सेम थिंग ऑफ द कैटेगोरिकल एंड ऑर्डिनल एज वेल। बट ऑर्डिनल में ये याद रखना कि मैन विटनी यू टेस्ट लगाया जाता है। आपको ये क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज जब आप क्रॉस सेक्शनल की और ओरिजिनल रिसर्च के एनालिसिस करते हो ना, तो आप ना डिफरेंट टेस्ट लगा रहे होते हो, ठीक है। और आपको जब तक ये पता नहीं होता ना कि आपकी वेरिएबल कौन सी है और कौन सी वेरिएबल पे कौन सी टेस्ट लगाना चाहिए, तो आपकी तो रिसर्च की जो रिजल्ट होती है ना, पूरी इंटरप्रिटेशन ही डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई यू नीड टू नो विच वेरिएबल और विच टेस्ट इज यूज टू डिफाइन दैट वेरिएबल, ठीक है। और रेशियो के लिए आप यार, अब ये इंटरवल और रेशियो होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक मेथड क्या होती है और नॉन पैरामेट्रिक क्या होती है। ये भी आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन होगा। एंड देयर इज द बाइनरी एंड द कंटीन्यूअस। So working through medical examination, just we will explain the one, like sex and the gender is usually the nominal and the binary in many classical data set. So although contemporary data set may contain more than two categories depending on how the variable was collected, if your question is depression prevalence different by the sex, then the variable is the categorical and the chi-square test may be the appropriate. But if you code the sex as 0 and the 0 and 1 like the male and female, then that coding does not magically make it the continuous, ठीक है। जिस तरह की अब ये आपको एसपीएसएस पढ़ाते वक्त बताया जाएगा, व्हेन यू डू द डेटा क्लीनिंग एंड द डेटा कोडिंग, you won't gonna put like the male and female in the SPSS sheet or Excel sheet that or in the R in which you gonna do the analysis. You just code the things like the 0 and 1. 0 is for male and 1 is for female, or vice versa. And तो ये नंबर आने के बाद इट डजेंट मीन लाइक इट बिकम्स द कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। इट इज अभी भी ये क्या है, आपकी डाइकोटोमस डेटा ही है, आपकी बाइनरी डेटा ही है, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसमें का इसका टेस्ट ही यूज होती है। तो आपको ये से नंबर देखने के बाद ही आपको ऐसा ना लगे कि इट्स लाइक कंटिन्यूस डेटा। इट इज द कोडिंग ऑफ दैट बाइनरी वेरिएबल टू मेक इट analysis a bit simpler or understandable in the language of the SPSS. And there is the age is the continuous variable, so it depends on like is it skewed data or non skewed data, ये भी आपको थोड़ी देर में अब हम एक्सप्लेन करेंगे। और हमने ये चीजें सारे ये टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइक द हियर द एज इज द रेशियो, if you treat the age as the ratio, then we use the parametric data. एंड अभी आप लोग को ज्यादा लग रहा होगा, बट इट विल एक्सप्लेन सोन। तो नेक्स्ट थिंग, अब हम सिंपल से जाते हैं। नाउ इट इज द हाईलाइट ऑफ द टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल स्टार्ट नाउ लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक्स about the what is the descriptive statistics and what is about the data distribution. So cross sectional research में तो आपको पता ही है कि there is two outcome. One is the prevalence outcome, another thing is association outcome in analytical cross sectional research, and there is the distribution. And we will calculate the frequency, we will calculate about the percentage, ठीक है। तो अब इसमें ये होती है कि देखो, अगर हम अभी कितने पॉपुलेशन है इन दिस क्लास, एंड इफ यू कैलकुलेट द स्टडी आवर ऑफ ईच पॉपुलेशन और ऑफ ईच सैंपल साइज इन दैट ये पॉपुलेशन, तो हम उसको क्या निकालेंगे? ऐसे नहीं कि क्योंकि किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। दैट्स व्हाई देयर इज, अब हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट वुड बी लाइक द सेंट्रल वैल्यू, एंड दैट concept is known as the central tendency. So we have to measure that central tendency, and there are three ways to do that. One is the mean, one is the mean, another is median, and another is in mode. It is very simple, but I will explain in the research point of view. ठीक है, central tendency का मतलब है कि because there are the lot of data, like these are the lot of data. So these are the lot of data, like and different circle shape है ना, circle shape different है, and circle की size भी different है।
and if you got to know about the mean circle shape or circle size, then it would come like this much, है ना? ये सारा करके, and that circle represent your whole this circle. That is the measure of the central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि उसकी ऐसी डेटा जो होल होल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जांपल, इन ऑफिस लाइक द 20 population, there are a lot of variation in the income, like from the very low level job, from the 20,000, and the high level job to the 2 lakh. Then there would be the, like, if you want to calculate the mean, or mean of the mean income of the whole population of that office, then it would come like about 60,000, 70,000, or depend upon the data distribution. So why is it significant? Then we will say that each individual almost on 60,000 amount in that office. तो इसकी ये होती है कि अगर आप वो ऑफिस में काम करने जाते हो, तो ऑलमोस्ट आपकी ये प्रोबेबिलिटी है कि आप ये 60,000 के अराउंड पैसे कमा सकते हैं. So there are three ways to do that. That is one of the mean, median, and the mode. आपको पता ही है मीन क्या होती है? मीन इज द टोटल सम डिवाइड बाय टोटल सैंपल साइज. I won't explain that much. I will just explain the significance of that things. And what is the median? Median is like there is a lot of population, and you will arrange it in ascending order. And the middle value is the median, and the most repeating value is the mode. Like the in the data 2, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, and 5, 6. So here is like simply iski mode hogi 4 because it has a large number of repetition. And if you calculate the median of that, then we will ऐसे करके हम इसको ascending order में रखेंगे, and the total की divide कर लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. That's the 6 is the middle number. So it's solved. इस तरह करके कर लेंगे. ठीक है, that's the median, mean, and the mode. And why is it significant? Yeah, I have already told you. It's the measure of the central tendency and the representative of the whole data. और अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि वेयर यू शुड यूज दैट इंडिविजुअल, लाइक कब आप मीन यूज कर सकते हो, कब आप मीडियन यूज कर सकते हो, एंड कब आप मोड यूज कर सकते हो. तो मीन आप तब यूज कर सकते हो जब डेटा कंटिन्यूअसली डिवाइडेड है. इट्स नॉट लाइक वेरिएबल. लाइक इस तरह नहीं होना कि मतलब आपकी किसी की सैलरी 20,000 है, इट्स ओके, 20, 30, 40 इस तरह करके इंक्रीज हो रहा है, एंड फाइनली 2 लाख. देन इट्स गुड, यू कैन यूज द मीन हियर. बट if the data is like 20,000, 30,000, 40,000, and suddenly the 50 lakh, अगर इसमें देखोगे अगर इसमें देखोगे तो फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में मीन आएगा ऑलमोस्ट 60,000. ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट द होल डेटा because the 60,000 is the data that maximum number of the people on around that money, around that income. But here one CEO earns 50 lakhs and the people are earning hardly 20,000, 30,000, 40,000, and hardly 60,000 amount. Then it's mean suddenly change into like 3 lakh to 4 lakh. So is that 3 lakh represent the whole set of data? No, absolutely not. So which central tendency must use here? Median. Why? Because median क्या होती है? Median आप क्या करते हो? 20,000, 30,000, 40,000 इस तरह करके, and 5 lakh तो in value, and 5 lakh won't be the median of that data. And the which data would be the median here? Like the central data, and central data could be hardly like the 70,000, 80,000, and it represents the almost the central tendency of the data. So when the data is the continuously divided, or then you can use the mean. And when the data is not continuously divided, like it is like random, and there is the presence of outlier, a large level of the data distribution, then you can use the median. So here is the example, like in that example, mean is the 7, median is the 7, and the mode is the 7. Then it is the normally distributed data, नॉन स्क्यू डेटा को ऐसे डिवाइड करते हैं. अगर डेटा में स्क्यू है, अगर इस तरह करके अगर आपकी मीन, मीडियन और मोड वेरी कर रहा है, देन इट इज द स्क्यू डेटा. अब स्क्यू डेटा में भी ये होती है कि दो टाइप्स होती हैं आपकी, राइट स्क्यू डेटा और लेफ्ट स्क्यू डेटा. ठीक है, तो अगर ये सिंपली बता दे, ये जैसे ग्राफ है, ये ग्राफ देखने से आपको क्या लगता है कि किस तरह की है? देखो, एक ये ग्राफ होती है, लाइक ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ है. ठीक है, इसकी राइट से ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी हो गई,
आपकी लेफ्ट साइड पे जितनी डेटा है, आपकी राइट साइड पे उतनी डेटा है, एंड इट्स द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. बट व्हेन यू टेक द सेंट्रल टेंडेंसी हियर, देयर इज द वेरी लेस डेटा एंड देयर इज द वेरी मोर डेटा. ठीक है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि देखो कि मीडियन तो ऑलमोस्ट इधर होगी, है ना, मीडियन तो ऑलमोस्ट इधर होगी, और आपकी मोड होती है इधर. ठीक है, ये मोड होती है, मीडियन तो ऑलमोस्ट सेंट्रल वैल्यू इधर होती है. तो इसमें किसकी वजह से ये इधर गया हुआ है? इट्स द बिकॉज ऑफ द मीन. ठीक है, मीन बहुत बड़ा था, दैट्स वाई ये वो वाली डेटा हो गई ना, जिसमें ऑफिस वर्क में जिसका 50 लाख इनकम था, और उसकी वजह से डेटा एक्चुअली शिफ्ट टू द राइट साइड. दैट्स वाई इट्स द राइट स्क्यू डेटा. हियर द मीन इज मोर ग्रेटर देन द मीडियन, दैट स्क्यू द ग्राफ. ठीक है, दैट्स द राइट स्क्यू डेटा. एंड सिमिलरली इफ देयर इज दिस काइंड ऑफ डेटा, ओ सॉरी, अगर इस तरह की ग्राफ हो, ये होती है. अब इसमें क्या होती है, देखो कि इसमें लेफ्ट स्क्यू डेटा है ये, इसमें क्या है, इसमें मिडन ज्यादा है. ठीक है, मतलब कि अब मिडन तो इधर है, मोड इधर है. ठीक है, मोड इधर है, ये मिडन होती है. ठीक है, तो मीन आपकी लेफ्ट साइड को सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, तो डेटा दैट सपोर्ट द लेफ्ट साइड, दैट्स द लेफ्ट स्क्यू डेटा, एंड सपोर्ट द राइट साइड, दैट्स द राइट स्क्यू डेटा. आपको ये डेटा देख के पता चल जाता है कि अगर किसी तरह की राइट साइड की डेटा स्क्यूड है ना, तो आपको ये से लगता है कि ना कि इधर वाली साइड है ना, इसमें ज्यादा वेरिएबल और आउटकम है. एंड सेम इज लाइक द, आपको फिर जो ये लेफ्ट साइड में है ना, इसमें स्मॉल वेरिएबल, स्मॉल डेटा की आउटकम है. मतलब कि जैसे कि इधर 20 30 40 होगी, एंड सडनली देयर इज द 50 लाख हियर, सिट हियर, दैट्स pull the whole data in the right side. So that's the skewed and the unskewed data. And why is it significant? Because on the basis of the skewed and the unskewed data, you have to put the different tests, like the parametric t-test and the non-parametric as well. Now, what is the ways to measure that dispersion? Like every data has the dispersion. डिस्पर्सन होती है ना, क्योंकि देखो कि नॉट द डेटा आर ऑल लाइक मेजर्ड और इज इन द सेम रेशियो और सेम रेंज, है ना. उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आ सकती है, लाइक किसी की 120 mmHg ब्लड प्रेशर हो सकती है सैंपल साइज में, एंड सो किसी की 240 भी हो सकती है, एंड एवरेज में 150 mmHg हो सकती है ना. तो अब हमने डिस्पर्सन देखनी होगी, होती है कि डेटा किधर से किधर तक डिस्पर्स हुआ है. अगर हम मैक्सिमम टू मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि रेंज, है ना. कि फर्स्ट डेटा हमारी 120 mmHg था, एंड लास्ट डेटा हमारी 180 mmHg था, देन द 60 mmHg इज द रेंज. ठीक है, रेंज इज 120 to 180 mmHg, एंड द रेंज वैल्यू इज द 60 mmHg. तो मिनिमम टू मैक्सिमम में कितना डिफरेंस थे. ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, आई विल एक्सप्लेन टुडे अबाउट द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यू. आपको मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगा आज, एंड वी विल एंड आवर लेक्चर टुडे. सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? सिंपली आपकी जो इंडिविजुअल डेटा होती है, जैसे कि अब ये तो मीन है, ठीक है, ये एक डेटा है, इसकी मीन है आपकी यक्स. अब यक्स से ये कितना दूर है? जैसे कि हम जब एक ग्राफ को डिवाइड करते हैं, देन वी विल डिवाइड द ग्राफ इनटू 3 स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मली इन द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. ठीक है, अगर हम ही अब सबको ये लिखेंगे कि इट्स द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. So in the normally distributed data, there are the 3 standard deviation that is mentioned, like the first standard deviation, second standard deviation, third standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ. स्टैंडर्ड डेविएशन को आप ऐसे करके ये वेरिएंस को रूट कर दोगे ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेरिएंस, एंड द रूट ऑफ द वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो व्हाई वी डू द रूट वैल्यू, वी विल एक्सप्लेन. तो इसमें इस तरह एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ को हम 3 में डिवाइड करेंगे. व्हाई वी डिवाइड द ग्राफ्स इनटू 3? बिकॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो डेटा वैल्यू होती है, दैट इज द 65, ऑलमोस्ट 65, और कितना होता है, आई थिंक अराउंड, रुको, 65 भी जैसी लगती है मुझे तो, 95 एंड 97.5, 99.7 डेटा परसेंट डेटा थर्ड वेरिएबल में होती है, 68.3. ओके, सो इसमें आपकी 68.3% डेटा आपकी
फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करता है इफ योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड आपकी सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका 95% डेटा लाई करता है, एंड इन थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी 97.5% डेटा 99.7% डेटा लाई करता है। देन देखो कि अगर आपने पूरा भी ले लिया तो 99.7% डेटा है, तो वेयर इज द 0.3% डेटा? नाउ दैट्स द थिंग, 0.3% डेटा इज द आउटलायर। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज आउटलायर एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको ये बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी जो डेटा होती है मीन डेटा से कितना डेविएटेड है, ठीक है। और आप में इसी में एक पैरेलल टर्म है जिसको हम जेड स्कोर और पाकिस्तान में जी स्कोर भी कहते हैं। अगर इंडिविजुअल डेटा को लेंगे कि इंडिविजुअल डेटा लाइक अगर ये वाली डेटा है, ये वाली डेटा तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में भी नहीं है, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में भी नहीं है, इट्स लाइक इन बिटवीन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड द मीन मतलब कि जो एक इंडिविजुअल डेटा कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है फ्रॉम द मीन, दैट इज द जेड स्कोर। ठीक है, ये जेड स्कोर हो गया। कल किसी ने पूछा था मुझे कि जेड स्कोर समझ नहीं आ रही, तो ये वाली चीज है। और अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैंने बता दिया ना, क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों सिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि हमने मीन तो निकाल लिया कि ये सारा ब्लड प्रेशर 120 से 180 तक डिस्ट्रीब्यूटेड था, एंड आवर मीन कम्स 140 एमएमएचजी। अब 140 एमएमएचजी तो आया हुआ है, पर एग्जैक्ट 140 एमएमएचजी तो नहीं होता ना सबका। मतलब कि अब ये होती है कि डेटा तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो हम इस तरह करते हैं कि 140 एम एच जी प्लस माइनस समथिंग वैल्यू, एंड प्लस माइनस दैट समथिंग वैल्यू इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? बिकॉज अब इसमें ये होती है कि अगर ये प्लस माइनस 10 एम एम एच जी आया हुआ है ना, तो इसका रेंज है 130 to 150। तो आपकी ऑलमोस्ट 68.3% डेटा आपकी 130 to 150 एम एम एच जी में लाई करता है। मतलब कि आपकी टू थर्ड पॉपुलेशन ये वाली डेटा ये वाली रेंज में लाई करता है। एंड इफ यू टेक द टू स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू, तो ये वाली रेंज में जिस तरह की टू स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया हमने, तो 120 to 160 एम एम एच जी, तो आपकी 95% डेटा आपकी 120 to 160 एमएमएचजी के बीच में है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है आपकी एक इंटरवल, एक रेंज को, ठीक है, कि आपकी जो पूरा डेटा है कम्युनिटी का, तो वो सारे वो किधर लाई करता है, कितने पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन की डेटा किधर लाई करती है, एंड दैट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स द जी स्कोर। एंड व्हाट इज द वेरिएंस? और वेरिएंस क्यों सिग्निफिकेंट है? जब फर्स्ट में क्या आया था, फर्स्ट में वेरिएंस आया था। फर्स्ट में ये जो है ना, ये मीन ये इंडिविजुअल डेटा है, एंड दैट इज द मीन, एंड यानी द सैंपल साइज, और इसको स्क्वायर किया हुआ है, एंड द स्क्वायर हैज ऑल द मीनिंग इन द वेरिएंस। लाइक ये तो डेविएशन ही है ना, हमने क्या किया है कि हमारी इंडिविजुअल डेटा से मीन कितना डेविएटेड है ना, और पूरी डेटा का निकाला हुआ है क्या करके हमने इधर सॉमेशन लगा के। ठीक है, आपको इतना मैथमेटिक्स जानने का जरूरत नहीं है, बट यू मस्ट नो अबाउट द की टर्म्स लाइक दिस इज द समेशन, एंड मीन दिस इज द मीन डेटा, दिस इज द इंडिविजुअल डेटा, और सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करके आप इसको डेविएशन कितनी, होल डेटा को आपने अगर डिवाइड कर दिया n-1 से सैंपल साइज से, तो यू गॉट द एक्चुअल डेविएटेड अमाउंट ऑफ वैल्यू, है ना। और इसको स्क्वायर इसलिए किया हुआ है कि जब आप सम करते हो ना, तो अगर स्क्वायर नहीं किया होता तो इधर वाले डेटा को अगर आप माइनस करोगे मीन से, तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू, और इधर वाली जो ज्यादा वैल्यू है, मीन से ज्यादा है, अगर इसको माइनस करोगे तो ये आएगा प्लस में। ठीक है, और माइनस और प्लस करते वक्त कैंसिल हो जाएगा, एंड इन द इंडिविजुअल व्हेन वी कैलकुलेट द समेशन ऑफ द डेविएशन, देन इट कम्स टू जीरो, एंड इट हैज नो सिग्निफिकेंट। दैट्स व्हाई वी डू द स्क्वायर। ठीक है, वी डू द स्क्वायर एंड वी फाइंड द डेविएटेड अमाउंट ऑफ द डेटा, दैट इज द वेरिएंस। एंड आफ्टर अब वेरिएंस निकाल लिया हमने, पर ये वो यूनिट में तो नहीं है ना। जिस तरह की अगर हमने एमएमएचजी का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एमएमएचजी स्क्वायर में आएगा वेरिएंस में, एंड इट्स नॉट द डेटा, इट्स नॉट द यूनिट दैट वी कैलकुलेट। सो हम अगर इसको रूट कर देंगे, और वो आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन आने के बाद हम वो एक यूनिट में आ गया, एंड वी यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स सो मच इन आवर रिसर्च पेपर। So that is the standard deviation and that is the variance। आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की समझ आ गई है या नहीं? अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा।
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, ये वैसे चीजें तो आसान है, और स्टैंडर्ड डेविएशन और आपको नहीं आई। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको सिंपल ये कहता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अगर मीन निकालते हैं तो मीन एक वैल्यू आ जाती है, एंड ये मीन होती है पूरी रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, इट्स द मीन डेटा एंड इट्स सफिशिएंट टू से दैट द एक्चुअल मीन लाई इन दैट। बट वेन एवर योर डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, लाइक अगर आपकी डेटा है 120, मीन आ गया 120 mm, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 122 to 124, है ना, मतलब कि सिर्फ 2 mm आ गया, तो 2 mm प्लस माइनस 2 करेंगे तो 122 नो सॉरी 118 to 122 आ गया, है ना। आपकी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इसके ये होती है कि आपकी डेटा ये प्रिसाइज है, मतलब कि ऑल द डेटा आर लाइज इन वेरी प्रिसाइजली लाइक इन द नॉर्मल नॉर्मल ब्लड प्रेशर। बट अगर आपकी डेटा है बहुत ज्यादा, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा वेरी करे लाइक द +-20, एंड योर इट्स कम लाइक इन द 100 to 140 mm, then it's a lot of data like the our your sample size are variable, मतलब कि बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है आपकी सैंपल साइज में ना, मतलब कि पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है एक दूसरे में, कोई लो ब्लड प्रेशर के है, कोई हाई ब्लड प्रेशर है। इट एक्चुअली एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा इन योर पॉपुलेशन, दैट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड यू कैलकुलेट द बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ओके, now the standard error and why is it significant? Standard error quantifies, अच्छा आपको समझ आ गई है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको रीजन बिहाइंड स्क्वायरिंग। अच्छा, रीजन बिहाइंड स्क्वायरिंग आपको पता ही है ना, माइनस की स्क्वायर आपका प्लस आ जाती है। अगर आप देखो ये वेरिएंस में वेरिएंस निकालते वक्त, लेट सपोज इधर मैं दूसरी करता हूँ, ये आपकी है एक डेटा, ये आपकी सिमिलर इधर की डेटा है, ये मीन है, मीन सपोज 50 है, ये 30 है, और ये इधर जो लाई कर रहा है ये 70 है। तो अगर आप इसकी वेरिएंस अगर स्क्वायर नहीं करोगे तो क्या होगा, 30 - 50 होगी एंड 70 - 50 होगी। ये तो क्या है आपकी क्या कहते हैं उसको, डेविएशन है ना, ये डेविएशन होगी। अगर ये डेविएशन को आप अगर आप समेशन कर दोगे, समेशन करते वक्त क्या आएगा, ये तो -20 आ गया, ये +20 आ गया, और सैंपल साइज अगर हम 2 हो गए तो 2 हो गए, तो सैंपल साइज क्या 0/2 0 हो गई, और इसको अगर आप स्क्वायर नहीं करते तो खत्म हो गई बात, आपकी तो 0 आ गई, है ना, डेविएशन तो सिर्फ 0 आ गई। तो ये है ना कि मतलब कि आपकी डेविएशन निकालने के लिए जैसे कि ये वाली जो डेटा है, ये वाली डेटा जो मिनिमम डेटा है, मिनिमम डेटा को नेगेटिव डेटा को पॉजिटिव करने के लिए आपने स्क्वायर किया हुआ है, सिंपल ये समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि ये कि ये इट्स अ नेगेटिव डेटा बट इट्स लाइक द डेविएटेड डेटा, इट्स साइन इज नेगेटिव बट इट्स द डेविएटेड, इट्स द 20 डेविएटेड, 20 लेस डेविएटेड एंड इट्स द 20 मोर डेविएटेड, बोथ आर द डेविएटेड, है ना। तो मतलब कि एक ने मुक्का खाया हुआ है, दूसरे ने भी मुक्का खाया हुआ है, पर दोनों ने ना अलग अलग गाल पे खाया हुआ है। अच्छा नहीं, बेस्ट एग्जांपल मैं ये बताता हूँ, अगर आपको किसी ने ना एक चाटा मारा है एक गाल पे, और दूसरे ने आके दूसरा चाटा मारा है दूसरे गाल पे, आपकी पेन कम होगी क्या? ये तो बड़ा अच्छा एग्जांपल दे दिया मैंने। हाँ, कि मतलब आपको अगर एक एक चाटा दो गाल पे मार दिया तो आपकी पेन कैंसिल तो नहीं होगी ना, पेन तो क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने स्क्वायर किया ताकि हमारी डेविएशन आ जाए। सही हो गया नबील, दैट्स द रीजन बिहाइंड द स्क्वायरिंग। एंड और स्क्वायरिंग को हमने रूट क्यों किया, बिकॉज वो यूनिट फिर आपकी स्क्वायर में आया था, एंड वी नो वी हैव टू पुट आवर यूनिट इन द सेम यूनिट एज द आउटकम और द वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी डिड द root value of that, and it becomes suddenly the worldwide acceptable, that is known as the standard deviation. Did you got my point, Nabil bhai? So if you got my point, then we will explain about the standard error, then the confidence interval, and we will terminate our lecture today. So what is the standard error? Standard error of the mean is, it's simple, like it quantifies how much sample means would vary across the repeated sample from the same population. Like if you repeat the samples, or if you do the repetition, then how much sample means would vary across the repeated samples from the same population. तो कितना vary कर सकता है, ठीक है, that's the standard error. Like you did one experiment, and in that same population you did the second experiment in the second population, second sample size,
देन आपकी ये दोनों में कितना डिफरेंस है, दैट्स द स्टैंडर्ड एरर। एक्चुअली जितना कम होना चाहिए उतनी अच्छी बात है। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो गई। कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इट्स द प्लॉजिबल, इट्स द वेल डिफाइंड डेफिनेशन। और कॉन्फिडेंस इंटरवल में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। लाइक इट्स द सिंपल डेफिनेशन, इट गिव्स द प्लॉजिबल रेंज फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा। और मैं इस तरह इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल तो आपको पता ही है। जिस तरह कि अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का बाप होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। हम इसको इसी से कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं फाइनली। और कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्सप्लेन स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे ही होती है। अब इसमें ये होती है कि आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगी, लेट सपोज 2 to 4 mmHg। ठीक है। 2 to नहीं, 120 to 140 mmHg, और लाइक 2 to 4 इस तरह कुछ कह दें। तो आपकी ये होती है कि अगर आप 95%, अगर आप ये जो सैम्पलिंग है और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसको आप रिपीटेशन करोगे, लाइक यू हैव कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम द सैंपल साइज, एंड इफ यू कैलकुलेट द और कलेक्ट द डेटा फ्रॉम सैंपल साइज मल्टीपल टाइम्स, लाइक जितने मर्जी आप मल्टीपल टाइम्स आप उससे डेटा कलेक्शन कर ले, एट द एंड जो आपकी रिजल्ट रिस्क रेशियो या आपकी कोई भी आपकी इफेक्ट साइज है ना, 95% चांस प्रोबेबिलिटी ये है कि वो आपकी ये इंटरवल में फॉल करे। एंड दैट्स द ओनली डेफिनेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। people make it like the complicated and people make it that definition or little bit vary, but this is the actual definition of the confidence interval। यू हैव, जैसे कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये मतलब नहीं होता कि आपकी 95% डेटा वो इंटरवल में लाई कर रहा है। नो, नो, दैट्स द एक्चुअल मिस्टेक दैट द स्टूडेंट डू। ठीक है। आप, मैं बता रहा हूँ कि लोग ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि 95% डेटा ये इंटरवल में फॉल करता है, एंड दैट्स द कंप्लीटली रॉन्ग। What is the real meaning of the confidence interval? You calculate the confidence interval and it lies like between two value, and it's meaning that अगर आप जितना मर्जी क्या करोगे, रिपीटेशन करोगे वो रिसर्च को, और उससे आप इफेक्ट साइज निकालोगे, तो वो इफेक्ट साइज का प्रोबेबिलिटी 95% चांस ये है कि वो ये इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है। एंड दैट्स द ओनली डेफिनेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है। आपको हर रिसर्च में कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है। 95% confidence interval is commonly interpreted as the range of the value consistent with the study data, and the many methodologists prefer confidence interval because they show both estimated effect and the uncertain। और confidence interval क्यों important होता है? सेम एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को ये कहता है कि आपकी डेटा कितनी वेरी कर रहा है ना। और कॉन्फिडेंस इंटरवल उसी की बात में कहता हूँ कि मतलब कि अगर आपकी कोई भी वो डेटा जितनी बार भी करोगे, तो आपकी इफेक्ट साइज ना ये रेशियो के बीच में, ये इंटरवल के बीच में आएगा। एंड दैट्स द इंटरवल इज द एक्चुअल आउटपुट ऑफ योर रिसर्च। ठीक है। एंड दैट्स द सिग्निफिकेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। और कॉन्फिडेंस इंटरवल मजीद आपकी लेक्चर में और रिसर्च पेपर में आपको हर जगह, आप आज जाके 10 रिसर्च पेपर खोले और उसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल देख लीजिएगा, एंड उसमें आप इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा कि आपकी वो रिसर्च की रिस्क रेशियो या ऑड्स रेशियो कोई भी आउटपुट है, वो उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में लाई करता है या नहीं। अच्छा। कॉन्फिडेंस इंटरवल अभी नहीं खत्म हुआ। ठीक है। इसकी अभी और ज्यादा इंटरप्रिटेशन होनी है। उसके लिए मुझे आप लोगों को रिस्क रेशियो, ऑड्स रेशियो एंड मीन डेविएशन, ये आपको मीन डेविएशन तो मैंने बता दिया, और आपको मैंने रिस्क रेशियो और ऑड्स रेशियो बताना है। ठीक है। पर ये मेरे ख्याल में हम कल की लेक्चर में कर लेंगे। आज आज आप लोगों को कितना समझ आया? फर्स्ट में थोड़ा सा वो एरर हो गया था अभी तक। हाँ, ऑन रिपीटिंग द रिसर्च और ऑब्टेनिंग द डेटा, there is a 95% chance that you will get the data in this range, right? Yes, absolutely, that's the definition I want to put in your mind about the confidence interval. There is the 95% chance. That's the one of the line you gonna carry your whole life doing the research, and nobody gonna taught you like this, because everybody will say like the confidence interval, what is confidence interval, and they will say that like the 95% of the data lie in that interval value, and that's not the definition. A good thing, Nabil, thank you, you have write the definition properly in your chat। तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझ आ गई है तो लेट्स एंड द टुडेज लेक्चर।